लिखना है बेटा इसमें. Very good morning to all of you, beta. We are going to start today with new chapter, and the name of the chapter is mole concept and stoichiometry. Okay. So few things of this you have already studied in your ninth grade. Okay. The initial part is entirely of ninth grade, but I'm going to revise the entire thing. Okay. So you have to first give this heading. Lot of writing work you have to do, beta. Okay. As I told you, beta, for organic chemistry and mole concept, I have done a lot of I have given a lot of writing work for you. So their heading will be what? First, you are going to give this heading: mole concept and stoichiometry. Stoichiometry. Then, beta, atom. You all know, beta, what is an atom? A smallest unit, right? Okay. So if I write H, O, N, all these are what? Atom. Then, beta, we have studied something called as RAM. RAM is what, beta? So when beta, whenever we used to define this RAM, it was 112 the mass of carbon 12. Any element, how many times that element is heavier than 112 the mass of carbon? So beta, I want you to write this entire thing. Continue. Chalo. Yeah. Mole concept, stoichiometry, then you write atoms, then atomic mass. Atomic mass short form is RAM, relative atomic mass. Ria beta, have you got your timetable and which topics you have? Then kindly send me. Ria Sawant. Hey, done, all of you. Acha, after relative atomic mass, beta, we are going to go for molecule. Atom means a single element. What is molecule, beta? Union of atoms, right, beta? So molecule is what, beta? Union of atom. ठीक है ना, beta? Okay. Done this. बहुत easy part है, beta. Done. Hey, little fellow. What? Then what will be your heading? Oh, wait. Not this. Yeah. Now you write this, beta. Molecule. Molecule is what, beta? Union of atoms. And then if I take a mass of a molecule, then how we write it as? Relative molecular mass or RMM. Write this. Mass of a molecule. Done. Online students, are you getting it, beta? Hello. Alright, so what happened to you? Why you're attending online today? Done. Quickly, hello. Let us go to the next part. Now, beta, in exam, they will tell you to find a. Before going to this, we are going to do what, beta? Okay. चलो बेटा आ जाते हैं ए हीरो ए ओके एटॉमिसिटी ए व्हाट इज एटॉमिसिटी बेटा व्हाट इज एटॉमिसिटी हेलो एटॉमिसिटी now suppose beta if I write only sodium so it is only single atom so atomicity is 1 acha beta if I write hydrogen how do I write H2 so how much is the atomicity 2 दो बार है ना हाइड्रोजन ओके वैसे ओजोन लिखूंगा तो व्हाट इज एटॉमिसिटी ए मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट फॉर्म ए फॉर एटॉमिक 3 P4 is tetraatomic sulfur is octaatomic so please write this atomicity atomicity स्कूल में बेटा चालू नहीं किया ये चैप्टर अभी तक होना चाहिए था है ना
No, no, but I think they have started in one batch, one of the school batches in your school. Hey, what man? What is going what way? Yeah, hello. ये पूरा का लिखा है एडी लिखा है। एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक ए हीलियम एंड नियॉन आर्गन नोबल गैसेस आर ऑलवेज मोनो एटॉमिक बिकॉज दे वुड रिएक्ट विद एनीवन बट हायर स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ोगे वो रिएक्ट होते हैं ठीक है एनीवेज तो सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा जो है वैसा ही करने का बोला ना ये एग्जाम्पल भी लेने का बेबी फटाफट क्या? प्लेस चेंज कर दूंगा तुम दोनों का बातें करने में अपने ध्यान देने का इधर में मार्क्स आएगा नहीं मेरे एग्जाम में समझ में आ गया ना हाँ हाँ आएगा हाँ 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 चलो हम्म अदिति सो गई है तो सर अदिति डॉग है। चलो बेटा तू लास्ट क्लास मैंने वो किया था उस सबने देखना यस यू आराम से रिलैक्स ब्रो चिल उसको वहां पे बैठने थे ना यहाँ पे मैं लिखने को नहीं होगा बेटा वहां पे आ जा रिया चल तेरा बैग हटा दे यस ना बेटा भाग दौड़ नहीं आराम से रिलैक्स कुछ मिस नहीं किया आपने बेटा तू लास्ट क्लास आई थी कि नहीं आई थी तेरा पेपर तूने दिया था कि नहीं तो हाय भेजा नहीं तूने ऑनलाइन तो मैं करेक्ट करके भेजता तुझे करेक्ट करके भेज दिया ना चलो डन बस चलो डन डन ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट हेलो या प्लीज प्लीज डन 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 ये बस ना शू थયું चलो आगे बढ़ते लुक बेटा ए डियर आन्या बेटा यहाँ देख मैंने क्या करवाया था बेटा ये तो तुझे पता है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किया लिख के ही करने वाले हैं हम लोग इसका भी नोट्स दूंगा मैं बोर्ड बुकलेट का अलग से जैसे ऑर्गेनिक का अलग से दिया था ना बट ये चैप्टर हाँ कब बुकलेट नहीं मिला तो आज लेके जाना मेरे से याद से यार तू मेरे यहाँ पे है बेटा पड़ा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है ना 112 द मास ऑफ कार्बन 12 पूरे चैप्टर में हम लोग को रिलेटिव एटॉमिक मास बायट रखने की कोई जरूरत नहीं है फोन था ना वहां पे हाँ बस साइड में कुर्सी पे रखा है तूने मैंने देखा भी समझा क्या ये येड़ा समझा है क्या रिलेटिव एटॉमिक मास इज व्हाट 112 द मास ऑफ कार्बन 12 फिर बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है यूनियन ऑफ एटम्स ए मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एटॉमिसिटी इज व्हाट ये देखो एटॉमिसिटी मतलब इन एन कंपाउंड हाउ मेनी टाइम्स दैट एलिमेंट इज रिपीटेड ओके सो हीलियम नियॉन ये तो अकेले ही हो गए ना तो मोनोएटॉमिक नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है ओजोन देखो बेटा O3 लिखा मतलब ट्राइएटॉमिक P4 मतलब टेट्राएटॉमिक S8 मतलब ऑक्टाएटॉमिक बस बस हो गया अब बेटा आपको ना एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे सबसे पहला मैंने आपको क्या पूछा बेटा बोलो फाइन RMM ऐसा पूछेंगे ठीक है चलो पहला क्वेश्चन फाइन RMM ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखो चलो ये सब नाइन्थ में क्या होता फटाफट लिखना स्टार्ट करो आप हाँ फाइन RMM ओ बेबी શું છે रे हमेशा देगे कभी पाया नहीं अभी मैंने बोला तभी तू ध्यान नहीं दे रहा था ये रे सुबह सुबह कैफीन का नशा करते बैठता है क्लास में हाँ। अरे શું છે ये सोनी कुड़ी हाँ चलो RMM ऑफ CO2 तो कैसे ढूंढोगे बेटा याद आ रहा है नाइन्थ में किया था हाँ नहीं पहला देखने का कितने अलग अलग एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बोलो CO2 फिर CO2 के बाद देखने का कौन कौन अलग अलग एलिमेंट है C है और O है C कितनी बार है अंदर CO2 में एक बार O कितनी बार था बेटा दो बार और देखिए ये मास देके बेटा ये ब्रैकेट में जो दिया है वो तो सब्स्टिट्यूट कर दो इजी ले लो
सॉरी फॉर AMU अगर बोलेगे तो ही लिखना, वरना नहीं। नहीं नहीं नहीं। ए सीधा बैठा, समझा ना? हाँ। Sir, do you know Pinkesh, sir? Yeah, I know what happened. Pinkesh sir ने कल दोबारा चलो बस जीरो हो गया ये। AMU हम लोग लिखते हैं जनरली बेटा, लेकिन AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके ना बेटा? चलो ना, सुने बेबी, इफ आई टेल यू बेटा फाइन, ये नहीं बेटा, इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम, तो देखो बेटा ये एग्जाम में दिया रहेगा अमोनियम सल्फेट, NHS और O का वैल्यू दिया रहेगा, तो कैसे करोगे? तो अमोनियम सल्फेट में आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट? फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? So now which all different element are present? N is there, H is there, S is there, and O is there. N is how many times but here? अदिति बेटा कितना बार है N? हाँ वेरी गुड। कैसे 2 है बेटा? क्योंकि ब्रैकेट का। H कितना है? वेरी गुड, समझ में आया ना बेटा? ब्रैकेट रहेगा ना तो मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, चलो ले लो। देखिए मैंने फॉर्मूला भी बताया, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ए हीरो देव चल लिखना स्टार्ट कर। ए बस अरे बिना मतलब लो चुप आ जाओ सब, यहाँ पे कभी से बातें कर रहे हो, दिमाग खराब न मत करो वहां पे, वरना तुम्हारा वो त्रोले लेला नहीं करूँ। कुछ भी ना कहो। अच्छा अरे मैं तो तेरा वो यहाँ पे हेयर स्टाइल देख रहा था एकदम, दिमाग में भी शेव कर दिया तूने। चलो बेटा डन डन डन। ओके बस बस। स्वयं आता है ना। हाँ चलो डन, चलो डन डन बस बस। चलो इधर नहीं, काम कर अपना। चलो आ जाते बढ़ते आगे। डन डन, ऑल ऑफ यू डन। Now beta, if you remember, this is very important, which we have done in 9th grade also. Again, I'm telling you, online students, all of you are getting it. Anaicha, Asmi, Rinaya, Moe, Ria Sawan, Tiara. Hello. Okay. Yeah. But now beta, I want you to find. Remember beta, you have done this. Molar mass of what beta? Blue vitriol. Blue vitriol was hydrated copper sulfate. देखा बेटा, ये तुम तीनों को भगा दूंगा बाहर, समझा ना? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? डॉट H। तो बेटा इसमें हमको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये जो डॉट H2 का मतलब हमको ऐड ही करना है, वी हैव टू ऐड इट ओनली। ओके सो या वेरी गुड। चलो और क्या है, नेम मैसेज भी नहीं आ रहा है। चलो बस, हेलो, hydrated copper sulfate। तो बेटा here what is the important part, I'll just show you, look बेटा,
Here, this was very important. Can you see this dot H2 means what, beta? We have to again add it only. So this is our this part. Can you see this? So look, beta. Here there was copper, so I wrote copper. One sulfur, so one sulfur. O is how much here? 4, so I wrote 4O. इधर देख अभी ये डॉट का मतलब क्या बेटा? ये प्लस किया, फिर ये 5 था तो यहाँ पे 5 लिखा. H कितना है? हमने H is there 2 ना, so 2 into H. हमने O 1 into O, right? Then we have substituted all these values. These values will be given. Substitute it. Come on. Yes, there any doubt? Have you done this in ninth grade? Do you remember? क्या हो गया? बोल बेटा. मिश्रा. क्या मिश्रा? ये जानिया बेटा, कोई डाउट है तुझे? बोलो ना. अच्छा, मेरे को लगा कुछ कंफ्यूजन है आपको, इसके लिए आप तुम्हारा दिख रहा है ना सर? अरे देखा भाई, इसने तो दे चलो, डन डन डन. आराम से करो, कोई बात नहीं बेटा. आराम से, हौले हौले. अरे यार, इंटरनेट कनेक्शन ऐसा क्यों आ रहा है? Unstable. Online student, am I audible, beta? Because here I think it was showing unst. रश्मिशा सो रही है क्या? हाँ. ए टियारा तोरे ले लेला किधर क्या कर रही है? टियारा बेटा. देन चलो, डन डन डन. हेलो. भाषा का उपयोग मेरा लिख के हो गया किया कि सॉल्व Okay, now beta, next part we are going to go for is what? Percentage. किस में जाएंगे बेटा? Percentage. अच्छा, ले लो, हो गया सबका बेबी. जल्दी जल्दी कर बेबी. हाँ बा, अरे एक नंबर. आंखों में आंसू आ गए बेटा. चलो ये बेबी, यहाँ पे हो गया तुम्हारा कॉपी करके. अभी तक लोग कॉपी कर रहे हैं. चलो, फिर करने ये जल्दी करने ये बाय. चलो. Now, beta, what we are going to do? We are going to go for hello. Percentage ये लिखो ना फॉर्मूला पहले. Percentage composition is equal to percent of any element is equal to what? Atomicity of that element into its RAM. RAM means relative atomic mass upon RMM of entire compound into 100. Into 100. Copy कर रहे हैं. यदि इसका मतलब क्या बेटा, मैं आपको बता देता हूं. अगर हमने CO2 में बोला है तो बेटा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? बोल बेटा. कार्बन है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? बोलो बेटा. हाउ मेनी टाइम कार्बन इज हियर? 1. तो उसकी एटॉमिसिटी 1. फिर RMF व्हाट? कार्बन अपॉन कंपाउंड. पूरा कंपाउंड कौन है बे? कौन है बे? बोलना. CO अपॉन CO2 इंटू सांभर. संभर. 100. 100. 100. 100 को मराठी में कहते हैं संभर. शंभ तो शंभर ही बोला मैंने. तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन. शंभर. म्हणून असं लिहिलं मी. चला आता पुढे जाऊया. चला. पुढे 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 ही तो बोला ना मैंने. पुढे कुछ भी क्या. बस. डन डन. ना बेटा, पहला सम. फर्स्ट सम. हेलो. हेलो. फर्स्ट
लुक बेटा, इफ आई टेल यू, अच्छा बेटा अगर ये कंपाउंड है, ये देखो, फाइंड, आई वांट यू टू डू दिस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। ए बेबी, बस यहाँ पे देख, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाई। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरे इसका आरएमएम ढूंढना पड़ेगा। देख तो हम लोग ने आरएमएम ढूंढा कि नहीं। फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मैं क्या करूंगा, ओके, एटॉमिसिटी कितना था कार्बन का, 1 × RMM ऑफ कार्बन अपॉन RMM ऑफ CO2 इंटू 100, ये आ जाएगा। अच्छा बेटा, जब दो लोग ही हो गए ना बेटा, तो दूसरे का कैलकुलेशन नहीं करने का, ऐसा एक्टिंग करने का, लिखने का, फिर बाद में इसको 100 में से माइनस कर देने का। आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा ले लो, ले लो, ले लो। अरे इजी है ना बेटा ये, ठीक है ना, कॉपी करो, कम ऑन। लुक बेटा, अगेन एंड टेल यू, वी हैव डन दिस इन 9th ग्रेड। बीमार, अब शांत हो। डन 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 डन। हेली तो, अरे करना, मैंने करके तो रखा है तेरे लिए। गिड़ी कल तक करेगी। हाँ, तो सही बोला, पागल है वो तो है ही ना। हाँ, जन्म से पागल है। जन्म से बस नहीं सालों के अब तो देख, अब तो नहीं, मैं देखती हूँ पर लिखने नहीं दे रही है। अरे stop it ना। बेटा, यहाँ पे ध्यान दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो लाइफ में यशस्वी बनोगे, है ना। हाँ, हमने स्वयं से कुछ करना चाहिए। आयुष्यात अगर, आयुष्यात अगर यश पाहिजे मग तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, अभ्यास में रहेंगे। चलो डन डन डन, बस बस। देखो सर, इनका फैन का बहुत सैड है। अरे फोटो दो। अबे कॉलर पे नहीं, कॉलर किसी गले पे। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा। हेलो, ओके, ए ए बस, ए बाय, ए हीरो, बस। चलो, ऑल ऑफ यू लिसन बेटा, वी आर जस्ट डूइंग बेसिक, नाउ वील गो टू लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग, ओके। चलो ना, या धीरे धीरे आगे बढ़े बेटा, हो गया। अदिति बेटा जल्दी लिख रहे हैं। हाँ, ये दोनों है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी ढूंढना है। ऑक्सीजन 2 बार था, समझा कि नहीं, अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखना ऑक्सीजन अभी 2 बार था कि नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा, ये आप लोग को पता है सम था 9th में, बहुत इंपॉर्टेंट था, एकदम लास्ट सम था बेटा। फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर व्हेन ब्लू विट्रियोल इज हीटेड, और आई कैन आस्क दिस, फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ मास। तो बेटा अगर आपको पता है ये ब्लू विट्रियोल अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये डॉट वाटर मॉलिक्यूल इट विल लूज, आर यू गेटिंग? सो दिस इज नथिंग बट लॉस ऑफ मास और नॉट। So how much water is lost? 5 molecules. तो percentage loss will be what? 5 into water. और किस में से लॉस हुआ? ये पूरे कंपाउंड में से ना, so divide by entire कंपाउंड का मास, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्म देख, पहले हम लोग CuSO4 हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, 250 आया था कि नहीं।
बट अपने को सब में ये पूछा है क्या? नहीं, हमको क्या पूछा है? परसेंटेज लॉस ऑफ मास। तो परसेंटेज लॉस ऑफ मास और वाटर अगर ऐसा पूछा तो 5 into वाटर अपॉन एंटायर थिंग। प्लीज ये 5 वाटर ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता है, प्लीज समझ में आ गया ना? तो 5 into वाटर मतलब वाटर का कितना होता था 18, तो 5 into 18 90 अपन पूरे का कितना था 250 into 100। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट आंसर यू विल गेट बेटा? 36%। तो बेटा ये कॉपी कर चले या स्टार्टिंग से यहाँ से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज लॉस ऑफ मास और परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर कॉपी कर बे गुर। क्या होगा? क्यों है एकदम दुखी दुखी क्यों नजर आ रहा है? तो अपने ऑर्गेनिक के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी करा है। वो सब मत देखो तुम लोग बेटा। मैंने तुम लोग को कुछ सोच समझ के जितना दिया उतना ही, तुम्हारे प्रीवियस बैचेस को भी जितना। हाँ तो आने देना। तो फिर वो यूनिट टेस्ट में इंटरेस्ट है कि बोर्ड में इंटरेस्ट है? मैं देखा ये तुम्हारा वो आया रैंक 1 समर, रैंक 2 ये क्रिश उनाडकट एंड प्रिशा मेनन। एंड देर हाँ। रैंक 3 किसका है वो नहीं पता है। डायरेक्टली वन है। जिया मैं जिया हुआ आदित्य चौधरी होगा। ठीक है। चलो चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट एनी डाउट डियर? रिया सावंत आर यू गेटिंग इट डियर? हेलो रिया बेटा, एम आई ऑडिबल डियर? Yes, यू गेटिंग इट ना डियर, राइट? सर वो yes, sir. रीना बेटा, हाउ आर यू बेटा? आर यू गेटिंग इट? क्या ओए ओके चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट। ये सब कंटिन्यू हो रहा है अभी? आगे बढ़ो। अरे अभी तो हम लोग ने ढूंढा था ना बेटा। अब आगे सम कंटिन्यू करने हैं। हमको परसेंटेज लॉस ढूंढना है, तो परसेंटेज लॉस का क्या फॉर्मूला होगा ये लिखो। परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर विल बी व्हाट दिस, मल्टीप्लाई बाय 100। कम ऑन डू इट फास्ट। रिमेम्बर बेटा, याद आ रहा है ना हम लोग ने किया था? हाँ 9th में। क्या तुम लोग रंगोली रंगोली खेल रहे हो? करो ना, जो पेन मिला उससे लिखना स्टार्ट करो ना, ठीक है ना? ओ यो ब्रो, या चलो। Now, beta, we are going to study things which you have not done in your ninth grade. Okay, the very first one is a gram atom. नाम सुना है कभी ग्राम एटम? हाँ, वहां पे खाली डेफिनेशन था, उसके सम्स नहीं थे। मेरे को ये शीट नहीं, कौन सी? लिखनी सीट है गधे। तो वही तो बोल रहा हूँ। तू तू नहीं दी क्या? सब दिए। तूने घुमा दिया रहेगा। पीडीएफ दिया था। तूने घुमा दिया रहेगा। दूसरा में नहीं दिया तो मैं। तू है ना, तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लास्ट क्लास आया था तो लेके नहीं जा सकता था। ये बहुत पहले दिया था, उससे पहले। लास्ट लास्ट क्लास जब टेस्ट लिया था हाँ तभी तो इतनी शांति रहती थी क्लास में। चल बेटा यहाँ पे दे। फर्स्ट बेटा, नाउ डेफिनेशन बेटा, लेट अस स्टार्ट। gram atom, what is gram atom beta? Given mass of atom, given mass of atom upon relative atomic mass, write this. झिंगुर तू लिख रहा है ना ये? हाँ लिख। gram atom, what is gram atom? Given mass of atom upon relative atomic mass.
ये तेरी सिस्टर अभी कहाँ पे गई है? फिर कौन कहाँ कर रही है? कैसा पोस्ट कर रही है? हाँ, कहाँ से? हाँ, सुना है मैं तो। उसने वो सीटी नहीं दिया था, सीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे ना तुम लोग का। डोमिसाइल यहाँ का है कि? सीबीएसई का उसका अच्छा आया था। Very good. चलो, ये डन डन। अच्छा बेटा, अभी एग्जाम में सम कैसा आएगा सुनो। अगर अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोग ना एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल होता तो फॉर्मूला क्या होता बेटा? यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल होता, यहाँ पे गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये डेफिनेशन लिखा सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सम बताते छोटा सा। फाइंड ग्राम एटम, ए फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ए बेबी कॉपी कर चल। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलो कैसे करोगे? धियो यो ना बेटा, बताओ क्या करोगे बेटा? ग्राम है कितना, गिवन मास कितना है बोलो बेबी? हाँ, और एटॉमिक मास कितना है? वेरी गुड, सो 8/16। ओके, 2। Not bad. क्या होता है ये? तारे जमीन। हो न जाए बेटा, आराम से करना। यूनिट लिख, ग्राम एटम, ग्राम एटम यूनिट नहीं लिखा है तो फिर हाँ। ए ध्रुव, ना ना, हाँ, दिमाग खराब मत कर, चल आराम से बेटा, एकदम रिलैक्स। आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट टू आंसर। बस बस बस, ये लिखने दे बात बात। ग्राम एटम लिखा, यूनिट ईड़े मेरे को यहाँ से दिखता है। हाँ क्या बेबी? जीए का लिखना, इतना शॉर्टकट वाली ग्राम एटम लिखने का। अच्छा बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन। ग्राम मॉलिक्यूल बस एरिया। सावंत नहीं, गांधी, सॉरी। चलो बेटा आ जाओ बस। बहुत बहुत सुनहरा भविष्य बेटा, बर्तन आप घिसोगे उससे बेटा, डोंट वरी। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ ए। बस ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? दिस कियारा बेटा, कियारा ना, तो कियाना, कियाना, हाँ कियाना, कियाना बेबी। ग्राम मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा? गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन गिवन मास। अच्छा बेटा, इसमें ध्यान देना बेटा, कभी भी अगर कोई गैस दिया रहेगा ना तो नीचे आरएमएम में बेटा पूरा गैस लेने का। बच्चों का क्या आदत है, खाली ऑक्सीजन तो ओ लिखो नहीं, O2। नाइट्रोजन होगा तो N2। मैं बताते चलो बेटा, डोंट वरी। पहले ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको बताते आ जाओ। बस नो मारा मारी किया ना। ये फॉर्मूला लिखा सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू गेटिंग इट? इजी ना बेटा, इट इज वेरी वेरी इजी, इजी, वेरी इजी। ए बे, बस दिमाग खराब मत कर अभी। मैं बेटा, बेटा मैं तेरे गले में कुत्ते का पट्टा पहनाएगा, ऐसा लुंडी करेगा ना, ऐसा खींचेगा ना मैं। समझ गया? अभी से देख रहा हूँ, अभी से देख रहा हूँ। अब न, बस चलो। I am giving you now next sum beta, that is yo। हमने ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा, अभी आपको ये सब मैंने दिया है। फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल इन, तू ही बोल बेटा अभी क्या करेगा? विवान बेटा बता क्या करेगा? हाँ
अबे तू ये भाई चुपचाप बैठ। 22 upon 34. 34। अबे पहला मेरे को बता 22 ग्राम अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अच्छा CO2 हाँ तो देख ये सब मैं आंसर करो। हाँ करेक्ट बोला रे 1/2 और ऑपोजिट क्या होगा ये ग्राम, अरे यार वाइट ऐसा 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है। हेलो हाउ आर। Anya beta, are you getting it, dear? Yeah. Now once I am giving you, चले चौहान ना बेटा, क्या नाम है तेरा? चौहान। इनिशियल नेम क्या है? अथर्व बेटा। अथर्व बेटा, नेक्स्ट सम यू आर गोइंग टू डू। चलो नेक्स्ट सम बेटा, ये नहीं ध्रुव करेगा, सॉरी रुक जा। ऐसा नेक्स्ट हाँ दे रहा, पहले ये हो गया सबका कॉपी करके। वन पीपल ओके ए बड़े मम्मी का फोन नंबर दे ऑनलाइन स्टूडेंट, हैव यू ऑल कॉपीड दैट ना बेटा? अरे यू वांट मी टू अगेन कम बैक टू दैट? या डन दिस ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो। ध्रुव बेटा, यस you are going to do this. Find gram molecule in 7 gram of nitrogen, and N is nitrogen का atomic weight is 14. चलो do this all of you. सबका बारे हाँ एग्जाम में वही है हाँ बेस्ट नहीं गलत है। मेरे मार्क्स सही तो है मेरे मार्क्स की बना और क्या क्या सब आया गलत है। भाई तो N2 ग्राम मॉलिक्यूल बोला है ढूंढने के लिए। हाँ हाँ ये हो गया, निकल गई हिगड़ी। यही मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में, कभी भी ऑक्सीजन दिया रहेगा या नाइट्रोजन और ग्राम मॉलिक्यूल बोला है तो खाली नाइट्रोजन नहीं लेना है, N2। समझा? हाँ वेरी गुड बेटा, अप्रिशिएट। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? नहीं पर डॉक्टर भी यही पहना डॉक्टर भी वही पहना RMM ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? N2 होता है कि नहीं? तो गिवन मास कितना है? 7। नाइट्रोजन का RMM कितना होगा बेटा? हाँ तो 2 बार है ना, तो 2 × 14 आएगा वो, समझा कि नहीं? तो 7/28, दैट इज 1/4, एंड दैट इज हाउ मच बेटा? 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल। समझा क्या? तो ये कॉपी करना है सम पूरा। अभी तुमको सॉल्व करने के लिए दिया है ये, देखा इसमें मिस्टेक हुआ कि नहीं? मैक्सिमम स्टूडेंट ने रॉन्ग किया है ये। यस ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। बेबी कॉपी किया गया ये हीरोइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग इट बेटा? हेलो। अब बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज अभी आपको ना नया चीज हम बताते, आ जाओ। भाई कौन है, कौन दिमाग खराब कर रहा है वहां पे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा बेटा ये सुनो ना, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा पूरे इसमें? MF चलेगा। एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल
एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मैं क्या यूज करूंगा? EF। चलो बेटा, आपका एक हेडिंग होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू डू। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला घेऊन टाक। लिखना हीरो। चलो, now बेटा, we are going to study what is empirical formula बेटा। Okay, molecular formula, you know बेटा, it is the total number of atoms of a particular element present in its compound। सपोज मैंने CO2 बोला है, तो C कितना है 1, O2 कितना है 2, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि नहीं? अभी आज हम लोग करने वाले हैं भी नए न्यू कॉन्सेप्ट में आपको बताते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं। तो भाई बेटा, मैंने पहले ही एग्जांपल ले लिया। पहला एग्जांपल में ले द वन फर्स्ट एग्जांपल। आई एम गोइंग टू गिव यू बेंजीन। डू यू रिमेंबर बेटा, वी हैव डन बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। अभी मैं लिख रहा हूं, चलेगा ना बेटा? मतलब ये रे, तो यहाँ पे क्या होगा? C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला था। अब मुझे क्या करने का? एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए व्हाट आई डू? CNH फर्स्ट ए टू राइट। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट? सोनी कुड़ी, हाउ मेनी आर देयर बेटा? CNH। ओके, C कितना है बोल बेबी? H कितना है? वी हैव टू टेक दैट रेशियो बेटा। सो ये कौन सी में क्या हो जाएगा? 1:1। तो देयर फोर अभी फाइनली आपको क्या मिलेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, अदरवाइज आई राइट EF। हाँ बेटा। सो नाउ टेल मी बेबी, हाउ मेनी C? 1। ओके, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C। और H कितना है? ओनली 1। तो CH। 1 को हम लोग लिखते नहीं है, 1:C। अंडरस्टूड? तो हाउ आई गॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला? What I did, I took the ratio. So it is the simple of what? Of different elements present in a molecule. So it is the simplest whole number ratio of different element present in its molecule. Clear? घेऊन टाक this first example. हाँ, तो क्या लिखना है? मतलब यही सब पूछने वाले। This is the new part which you are starting. Look, gram atom, gram molecule, and this molecular and empirical formula. So first example was for which compound? Benzene. So this was benzene. Benzene का formula आपको पता है ना? ये आपका empirical formula हो गया। चलो बेटा, अभी हम लोग आगे करेंगे। आ जाते हैं। उई माँ, डन 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 डन। डन डन। अभी आप दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप बताओगे मुझे। आर यू ऑल रेडी? क्या आप अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए तैयार हो? चलो, आई एम गिविंग यू सेकंड एग्जांपल। वी हैव डन ब्यूटेन। डू यू रिमेंबर ब्यूटेन? चलो, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, C4H10। चलो बस, अभी इधर आ जाते हैं। अद्वैत बेटा, टेल मी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? C और H है। अच्छा, C कितनी बार है? H कितना है? अभी रेशियो ले लो, किसमें कट होगा ये? वेरी गुड। तो देयरफॉर एम्पेरिकल फार्मूला भी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। देयरफॉर एम्पेरिकल फार्मूला इथेन नहीं, C2H5। इतना लिखना है आपको। EF मतलब एम्पेरिकल। वेरी गुड बेटा, यू आर गेटिंग इट। चलो आ जाओ, कॉपी कर रहा है। वेरी गुड। बस, मेरे को ही क्यों देख रहे हो?
अच्छी अच्छा बोला देखो मैंने भाई कॉम्प्लीमेंट तो ये मैंने हो गया अच्छा सर ब्रेक मिलेगा मिलेगा, आपको दूंगा बेटा, डोंट वरी। इतना मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं दूंगा ब्रेक। ठीक है, चलो। ओके बेटा, आ जाते हैं। प्लीज प्लीज प्ले द सॉन्ग गूगल। आ जा बेटा। थर्ड एग्जाम्पल है। नाउ दिस आई वांट यू टू डू ऑन योर ओन। कुछ कमान डू। ए बोला ना भी, डू दिस ऑन योर ओन, डू दिस ऑन योर ओन, डू दिस ऑन योर ओन। ए सर बैरिकेड ढूंढना है ना हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं हम लोग? वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं? C1 H2 CH2O हाँ मैं यो ना बेबी। अरे हाँ सर अरे क्या बात है अस्मी, वेरी गुड। चलो चलो, सी एच ओ। अभी सी कितनी बार है? 6 टाइम्स। एच कितना है? 12। ओ कितना है? 6। देख बेटा, अगर मैं उठ गया ना तो वे ना अच्छे अच्छे लोग उठ जाते लाइन। ठीक है ना? दिया है पंडित ने सर की कुंडली में रेशियो कुंडली 1:1। और बोला इसमें 2 स्पेशल चाइल्ड भी है। ठीक है, आ जाता है बेटा, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ बस। अरे बोलो ना, क्या होगा? 3H2O। बरोबर। 1 को नहीं लिखते बेटा, 1 मतलब C × 1 = 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ए काम डाउन। हाथ मत लगा चलो बेटा, आ जाओ। हेलो बेटा, आ जाओ आ जाओ। अब मैं अभी अभी हम लोग लेने वाला एसिटिक एसिड। याद आ रहा है? एसिटिक एसिड। छतरीकू कुकू, छतरीकू। आई वांट यू टू डू दिस। इसमें आप लोग गड़बड़ करने वाले हो। सर वेट प्लीज डोंट टेक आप तो किसी को मत बोलो हाँ, नहीं नहीं बोलेंगे। वे क्या क्या है वो? अच्छा, अदिति बेटा, सी कितना है बोल? सी कितना है? दो 2। उधर से ये वो डबल डोर एच कितना है? 3 और 1 ये 4। कभी भी ऐसा बड़ा फॉर्मूला आता है तो उसको सिंपल में कर देने का। ओ कितना है? ओ ओ 2। CH1 आहा, ये अश्मी फटाफट आंसर कर रही है। चलो बेटा, आ जाते। 1:2 2:1। तो अभी देयर फोर यम्बरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बराबर है। लास्ट वन, चलो आ जाओ फटाफट। ये हो गया ये सबका कॉपी करके। ब्लीच। से खाए जा मैं दे रहा हूँ ना, ब्रेक दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं आई एम गोइंग टू गिव बेटा। वेरी गुड, चलो। फिफ्थ वन। अभी देख रहा। वाचर। क्यों नहीं है
वॉच, बोला ना वॉच वॉच, ध्रुव ने बोला सेम है ध्रुव क्या आदत है तेरे पे सब लेट ए चुपचाप बैठो और काम करो, आंसर बताओ। ये कट होने वाला है क्या? तो आपने देखा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं बेटा। कैसे? बोलो ना, कैसे? देखो मेरे को आपको ना फॉर्मूला बताना है, इसके लिए बेटा यहां पर हमने लिखा है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, और मैंने कुछ तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मिलेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी आप मुझे बताइए, आज हम लोग ने सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया था? बोलो। बैंड जी, बरोबर है कि नहीं? तो बैंड जी में आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? सी एच। ए तो सी एच से अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था इसको? अच्छा एक काम करते, एक एक करके। एक बैंड जी की बात क्या था अपना? ब्यूटेन ना, ब्यूटेन था। तो ब्यूटेन का क्या था बेटा? C2H5। फिर क्या था? ग्लूकोज, CH2 ग्लूकोज, ग्लूकोज बिस्किट क्या था भाई इसका? फिर क्या था? acetic acid एसिडिक एसिड, छत्रीकु। छत्रीकु मतलब वो पता है ना क्या हो जाता था इसको शव। हाँ, अभी इसको भी ऐसा। फिर लास्ट में क्या पड़ा था? पानी पानी पानी। same अच्छा, अभी मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था? इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको इसमें, इसको इसमें ट्रू। अरे भाई ये देखना, C2H4O2 था ना ये, इसको इसमें। ये आपने एक चीज नोटिस किया, अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मुझे किसी एक ना एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दिख रहा है? और एंड दिस ऑल दिस नंबर्स, ये सब नंबर्स दिख रहे हैं बेटा, ये सब नंबर्स दिख रहे हैं? क्या ये फ्रैक्शन है या सिंपल होल नंबर है? ओ माय गॉड, तो इसलिए बेटा, और ये सेम होगा हमेशा नहीं ना, चेंज होते जाता है ना बेटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? एन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको अगर ए एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करोगे? हाँ, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उससे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन। एन एन विल बी ऑलवेज, एन विल बी ऑलवेज व्हाट? होल नंबर। क्या है? चलो ले लो, मैंने आपको भी प्रूव करके बताया। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एंड, लेकिन हम लोग ने प्रूव कर दिया तो यू रिमेंबर बेटर, यू रिमेंबर इट बेटर। रिमेंबर इट बेटर। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, हाँ, सिंपलेस्ट होल नंबर बोलते हैं, जीरो से नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट बोला ना इसके लिए। मैथ्स की दुकान बंद कर अपना काम, ठीक है ना? ये टिस्का का पेपर कौन लेके जाएगा? तू लेके जाएगी? दे ना, दे देना। वेरी बैड। किसका बुला लेना अच्छा, ये मनुमय का पेपर कौन लेके जाएगा? दो उसका पेपर। उसमें चाहिए पेपर। तुझे दिव्या का पेपर लेके जाना है वो चलो डन बेटा। नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है? सर वो लिखना है। क्या? हाँ, ये पूरा लिखना है बेटा।
Yeah, Beta, we have done this formula, molecular formula and into empirical formula. Now, I want all of you to do, few formula we'll have to remember. What are those formulas I am going to give you right now? You need to, wait, it doesn't कहाँ गया ये नहीं ये हो गया ये मैंने सब तुमको कराया अभी बेटा दिख रहा है ना बेटा हेलो Now I want you to remember this four formula. चलो पहला आज हम लोग ने डिराइव किया कि नहीं tell me we derived this or not tell me molecular formula is equal to n into empirical formula and what is your n बेटा now भी हमको आगे पड़ेगा n will be what बेटा relative molecular mass upon empirical formula mass या way to be जैसे RMM होता है तो empirical formula का क्या होगा empirical formula mass कभी कभी वो लोग बेटा सब में RMM नहीं देंगे तो व्हाट इज RMM 2 इंटू वेपर डेंसिटी आप बोलोगे सर वेपर डेंसिटी क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा फिलहाल आपको इतना याद रखना है वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर ए कौशिक बेटा लुक हियर इफ RMM नहीं दिया है तो RMM की जगह पे कहना है सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट अरे RMM इज 2 इंटू 3 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट RMM की जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी और नीचे क्या था बोलो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट लिखा भी है ना फ्रॉम 2 एंड 3 चलो ये चार फॉर्मूला कॉपी करो दिस विल हेल्प यू टू डू न्यूमेरिकल्स दिस विल हेल्प यू टू डू न्यूमेरिकल्स हाँ ऑलरेडी है लेकिन फिर भी कॉपी करना है साथ में चार बार तेरे को प्रॉब्लम क्या है वो तो मैंने तुमको बताया वो कैसे आया ए उठा के पटक देंगे हम यही कर रहे हैं बस एकदम अद्वै बेटा आ रहा है ना तुझे ये सब यस वेट या मास वही सेम हुआ ना एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और ये आरएमएम है ना बेटा दिस इज नॉट दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास मैं बताता हूँ तुझे दो तीन सब तेरा दिमाग चलेगा बेटा उसमें तेरा ठीक है ना ये फॉर्मूला है बेटा दैट विल हैव टू रिमेंबर अच्छा मैं तेरे को प्रूव भी करके बताता हूँ ये चल हेलो नो टॉकिंग ए भाई नो टॉकिंग नो टॉकिंग आ जाते हैं चलो ए भाई अर्जुन हो गया अर्जुन क्या बना दिया रिया क्या हो गया भाई क्या चल रहा है तुम्हारा वहां पे तो फिर व्हाट मैन चलो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन न्यूमेरिकल आउट ऑफ दिस फोर फॉर्मूला वी आर आउट ऑफ दिस फोर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज वन तुझे ये मैं प्रूव करके बताऊं बेबी ये n इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आया चलो बेटा अब हम तुमको बैठाठी ये ले तुमको तुम्हारे लिए मैं बैठाठे इधर आ जाओ अब ये मैंने कोई भी एग्जांपल चलो ये ले ले बेंजी का अरे ना बेंजी का ले ले चलो बेंजी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बोलो हम लोग प्रूव भी कर सकते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा C6 और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बोल बेबी ऐसे है ये लिखने की जरूरत नहीं है खाली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग तो इसका बेटा मॉलिक्यूलर रामाम कितना हो जाएगा RMM बोलना C6 प्लस 6H बराबर है कि नहीं इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 78 ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास अरे C और H ही है ना बेटा तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 अब एन का फॉर्मूला क्या था बोल बेबी एन का क्या था बोल RMM अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट बराबर है कि नहीं
बराबर ना? तो क्या आएगा 78/13 कितना आएगा? 6। अभी बेटा देयरफॉर अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए फिर भी तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं ना, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था बोल? C6, EF कितना था? CH। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, n का वैल्यू कितना आया? 6। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब समझा n का फॉर्मूला वो आर एम एम अपन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे आया? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? चलो अभी हम लोग पहला। हाँ, नहीं नहीं अरे यार ये तो इसको वो पूछ रही थी कि ये कैसे आया, इनका ये प्रश्न था, मोहतरमा का ये प्रश्न था कि हमारे पास ये एन एन आर एम एम अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आया, तो मैंने पूरा तुमको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे ये yeah baby oh baby pay attention here। चलो अभी भी सम जो भी है इससे रिलेटेड में एक सम देता। फाइंड आर एम एन of a compound whose vapor density is 45, whose vapor density is 45। तो चलो बेटा अभी क्या ढूंढने का है? आरएमएम ढूंढना है और वेपर डेंसिटी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा रे राज? बोलो, वहां पे देखो अभी आपने लिखा है ना 4 फॉर्मूला। हाँ, आरएमएम इज व्हाट बेटा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हो गया, कितना इजी था बोलो। अरे ये फॉर्मूला पढ़ा लिखा है ना अभी हम लोग ने, तो 2 इंटू 45, 90, 90, 90। तो वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। नहीं, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू सेम masses। वो मैं बताऊंगा व्हाट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑक्युपाइड बाय अ पर्टिकुलर गैस अपॉन मास ऑक्युपाइड बाय 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो मैं बताऊंगा बाद में, डोंट यू वरी। पहला इतना करो, आप इतना दिमाग में गया। अच्छा दूसरा मैं कैसे सम पूछ सकता था? ए सोनी कुड़ी, दूसरा मैं क्या बोल सकता था बोल बेटा? वेपर डेंसिटी ढूंढने को बोलता और आपको मैं क्या देता बोलो? आरएमएम। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट सम, चलो आगे बढ़ू क्या? हेलो, हेलो। पोस्टर नहीं लिखा। अरे ले लो बेटा, फाइन। अभी मैं क्या बोलूंगा? क्या? ओके अभी मैंने तुमको अभी नया मैं दे रहा, नया 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 है वो। आर एम एम ऑफ अ कंपाउंड इज येटी फाइन पेपर डेंसिटी। तो क्या करोगे बोलो? तो आरएमएम कितना दिया मैंने? 80। पेपर डेंसिटी माहिती ना है, ढूंढने का है अपने को। तो पेपर डेंसिटी को शॉर्टकट में वीडी लिखा, देयरफॉर वीडी क्या हो जाएगा? 80/2 40। घेऊन टाक, घ घ घ घ घ घ घेऊन टाक, घेऊन टाक। Come on, man. Come on, man. What is going on here? जैसे फिर से निकाल देगा।
What man? चलो, हेलो, नो टॉकिंग। ए भाई, या नाउ नाउ ओके। नाउ वी आर गोइंग टू गो। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये एग्जाम में आएगा। चलो पहला सम, फाइन। ए भाई, प्लीज प्लीज प्ले द सॉन्ग। गूगल यहाँ पे देख। ए देगा भी सिर पे, तेरा प्लेस वापस चेंज कर देगा मैं। बस बातें नहीं। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओए, ये ना फोन साइड में रख। समझ में आता है सब, समझा ना? बस। अरे पर टाइम से बाद मैंने क्या? बस बेटा, ए लिख दे क्वेश्चन। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 40 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 6.6 एंड एक ब्रैकेट में ये देंगे। अब इसको कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। ये साल भी ये बोर्ड में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था बेटा, बहुत ही। हाँ तो कब बताते हैं ना भाई, एक एक करके स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड टोटल परसेंटेज। कभी भी ऐसा परसेंटेज दिया रहेगा ना, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल टोटल परसेंटेज कितना है देखो बेटा। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है बे, 40 प्लस 6.66, तो कितना आया? क्या ये टोटल परसेंटेज 100 है क्या? अगर बेटा कभी भी देखने का सब, फर्स्ट स्टेप वेन एवर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विल कम, फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट बेटा, वी विल फाइंड टोटल परसेंटेज। ओके लिटिल फेलो, ओके व्हाट विल फाइंड टोटल परसेंटेज। क्या ये टोटल परसेंटेज 100 है अद्वय? नो ना। सो इफ इट इज नॉट 100 देन रिमेनिंग विल बी ऑक्सीजन। सिंस इट इज नॉट 100 therefore oxygen is present, ऑक्सीजन इज। अच्छा, अभी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे ढूंढोगे बेटा? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस टोटल। 100 माइनस, लिखूं क्या वो टोटल परसेंट के, समझेगा? हमेशा नहीं, कभी भी याद रखना। अगर अच्छा सर तेरा जो जो बोल रहा था ना, अगर हेलोजन हुआ तो लोग है ना कार्बन हाइड्रोजन और है ना हेलोजन का देंगे, उन तीनों का ऐड करना। अगर वो 100 है तो ऑक्सीजन एब्सेंट, 100 नहीं है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है? वो रूल है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? होता है, हेलोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सब मैं सब बता रहा हूँ ना, शांति से देख। मनोमय, आर यू देयर बेटा? हेलो, आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। टोटल ढूंढने का और फिर बाद में 100 वो देखने का, 100 में से माइनस करने का। अनाइचा डियर, अमी, अमी नहीं, क्या नाम है, यस्मी या अमी, वो है साइलेंट लगा। रिया, ठिया यार, ट्रॉले ले ला, ट्रॉले ले लो या। ओके, अरे वो कुछ तो मीम आता है रे, वो लोग ऐसा ट्रॉले ले ले ऐसा करते रहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े नाउ। अरे बाद में डिस्कशन करना ना, ले लो ना, लिखो सब। चलो आगे बढ़े। हेलो, कम ऑन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। लिख लिया डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स। बेबी प्लीज। अभी दोनों बेटा क्या करने का, ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिया बेटा यहाँ पे देख। ओए ओए ओए, ए अभी बेटा, अरे यार मैंने मिटा दिया वो। अच्छा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले बेटा इसमें सम कैसे करने का, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऐसा टेबल बनाने वाले हम लोग। शांत, हाँ शांत, इतना बड़ा शांति से पहला सुनेगा तुम लोग, कोई लिखेगा नहीं अभी, सिर्फ पहले पे अटेंशन, पे अटेंशन।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट था बोलो? सब में तो कार्बन और हाइड्रोजन ही दिया था, फिर टोटल 100 नहीं था, तो हम लोग ने ऑक्सीजन भी ढूंढा कि नहीं। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम विल बी एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम विल, अच्छा मैं सब मिटा देता हूँ, रुक जा, तुम लोग को ऐसा कंफ्यूजन में एक एक करके बेबी स्टेप विल डू, बेबी स्टेप। हम्म हम्म, हम्म। अगर है क्या क्या देख लड़का है ना मेरा ज्यादा हो रहा है। आ जाओ, चलो बेटा। ए पहला स्टेप हम लोग को क्या मिला बोलो बेटा? फर्स्ट स्टेप, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ये दिया था कि नहीं? ए आदित्य बेटा प्लीज, अभी देख परसेंटेज दिया था कि नहीं? कार्बन का दिया था ना 40, हाइड्रोजन का कितना था? 6.66, ऑक्सीजन का हम लोगों ने ढूंढा बेटा। एटॉमिक वेट सबका पता है हमको, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब फर्स्ट स्टेप क्या ढूंढने का? एटॉमिक रेशियो। व्हाट विल कैलकुलेट? एटॉमिक रेशियो। व्हाट इज एटॉमिक रेशियो रिया बेटा? 40, मतलब सॉरी, फॉर्मूला इज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे, समझ में आ रहा है? ठीक ना? दिस 40/12। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा बोलो ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 40/12। यहाँ पे 6.6 इज डिवाइड बाय 1। अरे इसका परसेंटेज कितना है? दिस, तो दिस बाय दिस, इसको इससे डिवाइड करो। क्लियर है? अब बेटा मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये। अब क्या है नेक्स्ट हेडिंग, क्या है बोलो बेटा? नेक्स्ट टेबल में क्या करना है बोलो? किया ना बेटा प्लीज, यहाँ पे किया ना। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में ये जो नंबर्स हम लोग को यहाँ पे मिले बेटा, ये लिख देने का एज इट इज, यहाँ पे दिखा। अब इन तीनों में हु इज द स्मॉल, डेफिनेशन क्या अपॉन लीस्ट एटॉमिक, हु इज द लीस्ट? 3.3। अगर यहाँ पे 2.22 होता तो वो लिस्ट होता। आर यू गेटिंग इट? ये सब में देखने का, फिर जो छोटा होता है ना वो बेटा सब में डिवाइड कर देने का, नीचे डाल देने का, छोटा वाले मतलब छोटा वाला सब में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। वही तो लिखा है ना, एटॉमिक रेशियो अपॉन लीस्ट एटॉमिक रेशियो। क्लियर है? तो देखिए ये क्या आ जाएगा? 3.33। हाँ, अभी ये देख, ये इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, 3.33। समझ में आ गया? ये अभी इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसका इसका अभी बेटा यहाँ पे क्या टेबल बना है? नियरेस्ट होल नंबर, तो ये 1 हो जाएगा। 2 का नियरेस्ट होल नंबर 2 ही होता है, ये भी 1 हो जाएगा। अभी बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, सुनो। क्या आप बोलोगे सर ये नियरेस्ट होल नंबर क्यों लिखा? सपोज बेटा यहाँ पे आंसर अगर मेरे को 1.2 आता तो मैं क्या करता? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सपोज बेटा अगर मुझे आंसर 1.8 आता तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख देता? 2। आर यू गेटिंग इट? सपोज तो बेटा हम लोग कितने तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं? +or- 0.2 तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, +or- 0.2। सपोज ये बेटा 0.9 आता तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता? 1। लेकिन अगर बेटा 1.5 आएगा तो क्या आप उसको नेग्लेक्ट 1 लिख सकते हो? नहीं। 2 लिख सकते हो? नहीं। तो बेटा अगर 1.5 आएगा, मैं बताऊंगा एक सब, अगर 1.5 आएगा तो बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? नियरेस्ट होल नंबर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। लेकिन बेटा अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको करना पड़ेगा, कंपलसरी। वो मैं तुमको बताऊंगा, एक स्टेप आएगा, पहले फिलहाल इतना कर दो। अच्छा अब ये मेरे को सी कितना मिला फाइनली? सी कितना मिला फाइनली? 1। एच कितना आया? ओ कितना आया? हाँ तो CH2। चलो टेबल बनाओ पूरा, अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से काम कर छोटे। अरे फ्री हैंड भी आप चाहिए तो हॉरिजॉन्टली बनाओ, ये भी यूज कर दो बेटा, ये भी यूज कर दो आपका। अरे ये भी यूज कर दो, मतलब लिखते समय चाहिए तो आप ये मार्जिन भी यूज कर दो पूरा टेबल वाला।
आह, इनकी में नाम है उल्लू मत। मत करना। कैसा लगा आवाज आया ना प्लीज बैठो कभी पुलिस को इससे छोटा भी रहेगा। अभी इससे लंबा है वो Obviously, 4 साल छोटा है obviously नहीं, इससे छोटा कैसे रहेगा? इसमें 0 में टाइप ये बोल रहा ये फाइन नहीं होगा मैं बोला लगी बात प्लीज ए आपका बात करना चालू कर दिया मतलब हो गया आपका। ऐसा है थोड़ी फोर्थ लेवल होगा। ठीक है। ये 5 है। ये 5 बोल रहा हूँ तू क्या है? 5 तेरे जितना ही सेम है हम दोनों का ऐसे एक पढ़ो। बैठ फिर चप्पल बाहर भी पहनी है भाई। सेम है ना ए मैं था ये नोबल प्राइज ने मिला देखो टॉप पहन रहा है अरे तो चप्पल पहन रहा है। वो एलिवेशन मैनेज में मिल जाना अब इस पहले भी मिलता है पहले तेरा डबल है वो। तो ऑनलाइन भी कर रहे थे अरे पार्ट भी 6 फुट है ऑनलाइन क्या है पालकी इजीली 6 होगा। आई थिंक सबका अब बातें करें मतलब सबका हो गया है। ऐसा मत सकते हैं। अरे ये नहीं है मेरा फ्रेंड किधर है। ओके ब्रो कैसे 10 से बड़ा होगा बस। 10 नहीं 5। छोड़ दो ना बस फोर इज टू सारे भी होएगा भाई बोलो पर व्यू और यश में एक तो फुल डिफरेंस हो गई मतलब तू लोगों को छोटा बोल रहा है। हाँ ओ अरे ओ बात से है भाई।
वीडियो निकाल के भाई कोई तो जितना बोलो जिसने इसको ये पहना गया इसको नहीं टैलेंट है समझ रहा है क्या? Yes, yes. तुम फर्क नहीं पड़ता Same idea. ये बोला था मैं 5 Okay, everybody. I guess वो हो गया था ना सबका? नेक्स्ट चैप्टर थोड़ी कर रहा हूं मैं, वही है। कौन बोला? सर बस एक बात संडे हाँ, ये एम्पेरिकल बाखरा मत करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया सबका? बस वही क्या? सर अभी हो ही गया है सबका छोड़ दो बस बैठ गए मांगा। Okay. Now. वेपर बेटा, जो हम लोग ने एक पार्ट किया था वो करने दो। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्लीज बेटा, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज व्हाट बेटा? वेपर डेंसिटी मास ऑफ वो एक मिनट रुक जा क्या? हाँ जा सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम, वो मैं बताऊंगा। एक एक ये लास्ट पार्ट करो, चलो बेटा। वेपर डेंसिटी में बाद में करा होगा, चलो बेटा। प्लीज बेटा, अभी बेटा नहीं, आप ये कॉपी करो। चलो आप बातें कर रहे हो तो आप कर लो जितना बात करोगे उतना मैं लेट छोड़ने वाला, इतना याद रखो। जितना बात करोगे उतना लेट। वाह, खराब मत कर बेटा। ओके, नाउ we are going to go for बेटा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेपर डेंसिटी। मैंने आपको बोला था आज मैं वेपर डेंसिटी आपको बताऊंगा। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? मास ऑफ certain volume of gas upon mass of कर लो मैं और उतना लेट। वेपर डेंसिटी इज व्हाट बेटा? मास ऑफ certain volume of gas upon mass of same volume of हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला लिखो वेपर डेंसिटी का। देखना, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, दिखाई दे रहा है? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? यहां से यहां तक ये लिखो बेटा। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन।
वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। वहां पे क्या देख रही है? कुछ नहीं दिया, लिख आगे। हाँ, वहां पे क्यों लिख रही है? यहाँ पे अभी हम लोग सम करने वाले हैं अलग से वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ सर्ट वॉल्यूम ऑफ गैस अपन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा मतलब मैंने कोई यहाँ पे अननोन गैस डाला, ए अननोन गैस डाला तो उसका मैं मास ढूंढूंगा। ये पूरा बॉटल में वो गैस आ जाएगा, फिर उसको निकालूंगा, फिर अंदर क्या डालूंगा? सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डालूंगा, फिर उसका वेट निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेपर डेंसिटी। क्या मिलेगा? वेपर डेंसिटी। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अभी हम लोग ने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला के सम किए उसमें अगर आपको 1.5 आता तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो बाकी सबको भी किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। चलो इसका मैं सम बताता हूँ, एक चलो आ जाओ। और वेपर डेंसिटी हम लोग कर चुके हैं, उसको बाद में हम लोग ये भी पढ़े, आर एम एम इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? मत मत लिखने दे बेटा। ठीक है, चलो अभी इसका एक सम करेंगे। हो गया था ना कॉपी करके? प्लीज आई वांट यू टू कॉपी दिस सम, 7th वाला। हाँ नहीं नहीं, कोई फोटो नहीं भेजा, कॉपी करोगे अभी? नहीं। हाँ लास्ट। सॉल्व करना है अभी मैं बता रहा हूँ सॉल्व। गैस सिलेंडर देख बेटा, ये गैस सिलेंडर है, इसके अंदर कितना हाइड्रोजन जा सकता है? वो लोग ने बोला है 50 ग्राम। अब मैंने उसको निकाल दिया, फिर उसके अंदर गैस ए डाला। अदिति बेटा गैस ए डाला, गैस ए का वेट कितना रहा है? 200 ग्राम। फिर वो निकाला, फिर उसके अंदर क्या डाला? गैस बी, उसका वेट कितना आ रहा था? 500 ग्राम। फिर आपको क्या बोला कि गैस ए और गैस बी का मॉलिक्यूलर मास ढूंढो। क्या ढूंढो? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अभी हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? दोनों का वेपर डेंसिटी ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? मास ऑक्युपाइड बाय गैस ए अपॉन मास ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन। तो मास ऑक्युपाइड बाय गैस है कितना है? 200। एंड मास ऑक्युपाइड बाय सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच? 50। तो 200 अपॉन 50 तो कितना हो जाएगा बोलो? 4। वो वेपर डेंसिटी मिला ऑफ ए। वेपर डेंसिटी आरएमएम आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? फिर गैस बी का कितना वेट है बोल बेबी? 500। तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा? 500 अपॉन मास ऑक्युपाइड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। दिया है ना बेटा, कितना दिया है? 50। तो 500 अपॉन 50 10। फिर आरएमएम कितना होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 20। चलो सम कॉपी कर लिया, अभी आगे बढ़ेंगे। चलो तो पहले क्या करोगे बेटा?
अरे मैं बताते ना, रुक जाना बेटा, मैं लिखता हूँ अलग से। चलो, ये यहाँ पे आपने मैं करता, रुक जा, मैं करता चलो। चलो बेटा, ए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मास ऑफ certain volume of gas upon mass of equal volume of हाइड्रोजन गैस। बरोबर है? चलो भाई, एक है, अरे दोनों को एक ही सिलेंडर में डाले ना, तो वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं दोनों का? तो पहले आप लोग किसका करेगा? ए, गैस ए के लिए तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए क्या होगा? वेपर डेंसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट? बोलो। मास ऑक्युपाइड बाय ए, हाउ मच इज मास ऑक्युपाइड बाय ए? 200, and mass occupied by hydrogen is 50. So how much I got? 4. Vapor density 4. Therefore अभी अपने को क्या ढूंढने का? आरएमएम। तो आरएमएम का फॉर्मूला क्या था? आरएमएम ऑफ ए क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 8 ग्राम्स। हो गया बेटा। फिर ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या ढूंढने का था? वेपर डेंसिटी ऑफ बी, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय बी? 500 अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 50। 10, therefore summum of B, 2 into vapor density, so that is 2 into 10, that is 20 grams। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोल भाई हीरो, क्या हो गया? अरे बोल ना। नहीं नहीं, देख बेटा, इसके देख, सिलेंडर तो सेम ही है ना, तो वॉल्यूम सेम हुआ कि नहीं? राइट ना? पहले अंदर क्या डाला? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इतने में कितना ऑक्युपाई कर रहा था? 50। फिर गैस ए डाला, वो 200 ग्राम। फिर निकाल के गैस बी डाला, उसका कितना था? 500। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आओ, जय श्री कृष्ण। कर ले Why you're running here? Should copy this. Bye bye. Hey, nice bag, man. कहाँ से लाया? नीचे से। Wow. जॉर्जिया से। वाओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट बंद करना देना। बाय बाय।